اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے حیدرآباد، جہاں اس وقت شرجیل انعام میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے آئیں، ملک میں ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے آئیں، اور انہوں نے اس عزم کے ساتھ آئیں کہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جمہوریت کی راہ پہ لے کر چلنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس جرأت مندی کے ساتھ محترمہ آئیں اور ان کو تھریٹ تھے، اس کے باوجود محترمہ پہ حملے کیے گئے، جس میں سینکڑوں پیپلز پارٹی کے ورکرز جالے شہید ہوئے۔ اس دن کے عقیدت کو بناتے ہوئے پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بار 18 اکتوبر حیدرآباد میں منائی جائے گی، اور کل انشاءاللہ تعالی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب حیدرآباد میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کو خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ میں واضح کر دوں انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان میں جتنے بھی جلسے ہوئے ہوں، جتنے بھی بڑے کوئی پروگرام ہوئے ہوں، کل کا جلسہ اپنے ماضی کے تمام ریکارڈ کو توڑے گا۔ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اپنے ہی ریکارڈ کو توڑے گی، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور عظیم الشان جلسہ انشاءاللہ تعالی کل ہم لوگ حیدرآباد میں کرنے جا رہے ہیں، اور تاریخ ایک رقم کرنے جا رہے ہیں۔ اور جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس وقت بھی چیئرمین صاحب اس ملک میں جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں جس طرح انہوں نے تذکرہ کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اور چیئرمین صاحب نے اپنے منشور میں 2024 کے میں تذکرہ کیا تھا کہ عدالتوں کو ریفارمز پہ وہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں پوری پولیٹیکل پارٹیز کو وہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ کل کے جلسے میں انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی چیئرمین صاحب گفتگو کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل ایک تاریخی دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، کہ ہم ایک بڑا اجتماع ہوگا جس میں چیئرمین صاحب اپنے ورکرز کو آئندہ کے لاہے عمل کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور جو ہماری پارٹی نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں، جس وعدے پہ چلتے ہوئے چیئرمین صاحب نے اس وقت بھی دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ سندھ میں بنا رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑا غریب عوام کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے آج دن تک اتنا بڑا پروجیکٹ پوری دنیا میں نہیں آیا جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ سندھ میں جو سیلاب متاثرین کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے بھی انہوں نے ہاری کارڈ جو ہے کسانوں کے لیے وہ انٹروڈیوس کیا۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، جس میں ابھی تک ہم 20 ارب روپے حکومت سندھ خرچ کر چکی ہے۔ تو جتنے بھی ہر سیکٹر کے لیے، مزدوروں کے لیے مزدور کارڈ بھی پیپلز پارٹی لے کے آئی۔ اسی طریقے سے ہر سیکٹر کو پیپلز پارٹی پروموٹ کر رہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سوالات سے پہلے میں چاہوں گا اور دعوت دوں گا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر صاحب، کہ وہ بھی 2 الفاظ آپ سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، اور میں شرجیل میمن صاحب کا مشکور ہوں کہ اور یہاں کی پاکستان پیپلز پارٹی کا خاص کر جو اس دفعہ 18 اکتوبر کی میزبانی یہاں پر کر رہی ہے۔ 18 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن تھا، جس میں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کے، جنہوں نے شہادتیں نوش کی۔ کل کا جلسہ جو ہے وہ ان شہیدوں کو ایک سلام پیش کرنا ہے، اور میں خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے یہاں پر آیا ہوں شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ حیدرآباد کی عوام نے، حیدرآباد کی پارٹی نے کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو مایوس نہیں کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا، انہوں نے حیدرآباد میں ہمیشہ ترقیاتی کام کیے۔ ابھی جس طریقے سے شرجیل میمن صاحب نے بتایا کہ وہ ایک تاریخی ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع ہونے جا رہا ہے، باقی ڈیولپمنٹس کے جو کام ہیں وہ یہاں پر ہوئے ہیں، اور اسی بدولت ہمیشہ حیدرآباد کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو منتخب کیا ہے۔ اس وقت میں خیبر پختونخوا کی سچویشن پہ بھی جو ہے وہ
नज़र दौड़ाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर तो जब हम आते हैं तो तरक्याती मंसूबों का एक सुनते हैं कि क्या है, लेकिन आप हमारी तरफ जब आएंगे तो आपको ये सुनने मिलेगा कि धरना कब है, जुलूस कब है, जलसा कब है, नाच गाना कब है। तरक्याती काम का आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो। हर हफ्ते आवाम को जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के लिए जो है तैयार किया जाता है। कोई प्रोजेक्ट्स हमारी सूबाई हुकूमत के पास KP में मौजूद नहीं है जिस पे वो आए और कहे कि हम इस पे काम करना है। तमाम सरकारी वसाइल इस वक्त रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, और रियासत के ख़िलाफ़ जिस तरीके से मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, पुलिस इस्तेमाल हो रही है, बाकी इदारे इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर ये आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल होते तो मैं समझता कि कोई कंपटीशन जो है वो यहाँ पर भी आप करते। लिहाजा उसके बावजूद भी पिछले दिनों जब एक अमन जिरगा हुआ, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी सियासी इख्तलाफात को दूर रख कर हमने वन पॉइंट एजेंडा जो अमन के हवाले से था, हमने उसमें शिरकत की। उसके बाद वहाँ पर एक जिरगा तश्कील दिया गया, पश्तून का जिरगा 3 दिन का था। बहुत सी बातें की जा रही हैं। मैंने कल भी अखबारात में देखा और ख़बरें देखी कि उस जिरगे ने शायद ऐसे मुतालबात किए हैं जो कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं हैं, और तमाम सियासी जमातों ने उस पर दस्तखत किए हैं। ये मैं वाज़ेह करना चाहूँ कि हमने वहाँ जलसे मैंने ख़ुद भी जाकर उनके जिरगे से खिताब किया था, हमारी पार्टी की वहाँ पर नुमाइंदगी भी थी, और हमने बिल्कुल क्लियर हमारा एक स्टांस है कि जो चीज़ भी आइन के मुताबिक होगी, जो चीज़ भी आइन के दायरे में होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सियासी जमातें उसको सपोर्ट करेंगी। जो चीज़ आइन के दायरे में नहीं होंगी, जो चीज़ आइन के मुताबिक नहीं होंगी, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातें उनको जो है सपोर्ट नहीं करेगी। हमारी हमेशा महरूमियों का ज़ाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। हम खैबर पख्तूनख्वा के नाम के लिए हम जो है वो तरस रहे थे, और जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट की तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ मिलकर, तो हमें अपनी पहचान मिली, हमें NFC अवार्ड में अपना भरपूर हिस्सा मिला, हमें जो है सूबाई खुद मुख्तारी मिली, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली, और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह सर उठाया। आज भी अगर अमेंडमेंट हो रही और पख्तूनख्वा की तरफ से इश्यूज़ अगर होंगे तो उसका अजाला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है प्रेसिडेंट जो हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब ही करेंगे। हम इस उम्मीद के साथ हैं कि जो अमेंडमेंट्स आएंगी वो मुतफ़िका तौर पर इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके जो है वो मंजूर हों। कल चेयरमैन बिलावल साहब यहाँ पर आएंगे, अपने इस आइनी जो हमारा बिल है उस पर भी बात करेंगे, और फ्यूचर का रोड मैप भी हमें इंशाअल्लाह देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तले चेयरमैन बिलावल साहब की क़यादत में पूरी पार्टी मुत्तहिद है, और इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। देखिए जी, चेयरमैन साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि आइनी कोर्ट्स बने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उनका मुतालबा है, और चेयरमैन साहब ये भी एक सोच रखते हैं जो कि सिर्फ डेमोक्रेटिक सोच है, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की भी थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी थी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी है, कि सबको साथ मिलाकर फैसले करने हैं, कंसेंसस के साथ फैसले करने हैं। मैंने पहले भी कुछ दिन पहले कहा था मीडिया से बातचीत करते हुए, वोट्स का या नंबर का कोई मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि कंसेंसस पैदा हो, कि कोई भी दोस्त नाराज ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी नाराज ना हो, और सब उसमें इन्वॉल्व हों। अगर आप कोई भी ऐसी कानून साजी करने जाते हैं जिसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज अगर शामिल होती है तो अच्छी बात है। हमने तो कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने JUIF को भी दावत दी, PMLN से भी बात हुई, और हम तो कहते हैं PTI भी सामने आए, वो भी अपने तरामीम में हिस्सा ले, जो है मेंगल साहब की पार्टी है वो सामने आए, सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ चलें, क्योंकि देखिए जी ये मुल्क एक गुलदस्ता है, कानून रोज नहीं बनते, हमें सोच समझ के कानून बनाने चाहिए। जिस तरह 18वीं तरमीम मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का एक अजीम कारनामा है, जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं, अपने पावर्स उन्होंने पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई SHO के पावर भी देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास पावर गेम, इतनी लड़ाई यहाँ पे चल रही है कि हम लोग कोई अपने SHO के पावर देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिसके पास सिर्फ एक उसकी सिग्नेचर थी 58(2)B
58(2)B का इतलाक करके आइन में और वो असेंबली और हुकूमत तोड़ दे तो वो टूट जाती। लेकिन ये बड़ी एक जुर्रत का मुजाहरा था प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब की तरफ से, एक सियासी मैच्योरिटी का फैसला था। तो जो आपका सवाल है उसका भी जवाब ये है कि चेयरमैन साहब चाहते हैं कि सबको साथ मिलाकर चले, कंसेंसस के साथ चलें। किसी का कोई बात मानी जाएगी, किसी की कोई बात मानी जाएगी। तो ये एक अच्छी रिवायत है डेमोक्रेसी में, जो कि सिर्फ मैच्योर सियासतदान जो है वो ये सोच रखते हैं। जुनैद साहब, कौन जी? उसमें आज अली अहमद कुर्सी का बयान सामने आया है कि पार्लियामेंट है कि सेनेट है कि तो सुप्रीम कोर्ट हो क्यों, हम इस फैसले को मानेंगे नहीं और तहरीक चलाएंगे। तो क्या किसी सतह पर हुक्मा से भी कोई रास्ता किया गया? देखिए जी, ये भी शुरुआत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की और उन्होंने कहा कि जो लोग असेंबली में नहीं हैं हम उनसे भी बात करेंगे। और वो खुद चल के गए बार एसोसिएशंस के पास, मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के पास चेयरमैन साहब गए, उन्होंने उनसे बातचीत की, उनके सवालात सुने, उनको कायल करने की कोशिश की कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बेहतरी के लिए हो रही हैं, कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो रही हैं, किसी शख्स के हक में या किसी शख्स के खिलाफ नहीं हुई है। वो ये भी उन्होंने बहुत क्लियर किया कि हमारे लिए जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब भी उतने ही मोहतरम है जितने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मोहतरम है। हमारी कोई पसंद या नापसंद नहीं है और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ये तो अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के सरबराह ने जेल से बयान दिया कि जी मैं एक जज साहब का नाम लिया कि मैं उनकी हिमायत का ऐलान करता हूं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। आप जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल ना करें, आप जज साहबान को बायस करने की कोशिश ना करें, उनको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ना करें। वो सबके जज हैं, वो जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो सबके लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। हम उन रिफॉर्म्स को चाह रहे हैं कि जो माजी में बहुत बड़ी ज्यादतियां अनफॉर्चुनेटली अदलिया से हुई हैं, जिन ज्यादतियों के तहत परवेज मुशर्रफ के नाजायज इक़्तिदार को तोल दी गई, उसकी गैर आइनी जो स्टेप्स थे उसको लेजिटिमाइज किया गया, पीसीओ लाया गया, नजरिया ज़रूरत मनाया गया। फिर और आपने देखा कि जिस तरीके से कायदे अवाम को अदालती कत्ल किया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स गिराई गई। मोहतरमा जब इंसाफ के लिए गई तो उनको इंसाफ नहीं मिला। और इसी तरीके से बेशतर मिसालें, फिर जो काला दौर है अदलिया की तारीख में, इफ्तिखार चौधरी का, साकिब निसार का और बंदियाल का, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हिस्ट्री में लिखी जाएंगी। ये लोग, इन लोगों के नाम कोई जो है वो कोई इज्जत के साथ कोई नहीं लेगा। जी आप नहीं आएंगी तरमीम जो आई उसमें दरिया सिंध पर जो कैनाल्स बनाने की बात की जा रही है, इसमें कितनी हकीकत है? दूसरा जो है कारपोरेट फार्मिंग के हवाले से, जैसे कल भी एक सिंध की पार्टी है उसने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, इसके अलावा आबादगार जो है आए रोज इस पे एहतजाज कर रहे हैं, इजलास कर रहे हैं। तो इन 2 चीज़ों में कितनी देखिए जी, कॉर्पोरेट फार्मिंग डिफरेंट चीज़ है। जहाँ पे आपने कैनालों की बात की कि दरिया सिंध पे, उस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट के फोरम्स पे दे चुकी है और हमारा उस पर बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट से एहतजाज भी है। और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला जो सिंध के जायज़ हुकूक हैं उसमें किसी किस्म। हैदराबाद में वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहा कि कल इंशाअल्लाह चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो हैदराबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े जलसे में खिताब करने आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।